cleaning purpose. In Europe, you are Yeah, talking about in Europe. yeah, Mm. indoor. Yeah. They love shiny things and dead things. They love to eat. And They they're very clever especially birds. they were trained especially Uh-huh. to pick the cigarette butts, Acha. cigarette butts. Acha. Yes. And they take the cigarette butt and drop and get food in exchange? No, How did they train them? cigarette butts they were picking, Yeah. all the crows, Uh-huh. and they were collecting on the certain points. Yeah. So when the cleaner comes, so all cigarette butts are in There. 2-3 places. And then And the not cleaner in- gives food? Yeah, food. Yeah, food actually, as- that's how yeah. they train. And plates their Yeah. foods. Very smart. किसने कबू ने कौन कहाँ पे यानी क्रूज से उठाए नहीं पूरे पार्क से पूरे पार्क से अच्छा पार्क है ना तो पार्क से जो है ना वो अगर अब ये देखें दे आर वेरी स्मार्ट हम्म उन्होंने ये देखा कि जो बंदा स्मोकिंग कर रहा है वो उसको अपने जो है ना वो रखते हैं क्लोज कांटेक्ट में ना कि कौन कौन जहाँ उसने फेंका वो पिक करके फ़ौरन जा करके वो डस्टबिन में डाला और वहाँ पर जो है ना वो फिर अपना फूड भी लिया फिर वापस आया फिर पिक किया उठाया तो अब जो आपका गार्बेज कलेक्टर है Yeah, garbage. उसको आपको पूरे पार्क में नहीं जाने की ज़रूरत है वो डायरेक्ट वहाँ पर उसको जो है ना एक ही जगह कलेक्ट किया और वो तो इस तरह जो जानवर हैं उनको आप ट्रेन कर सकते हैं अब अगर जो है ना वो ट्रेन कर दें तो आप इनसे बहुत बड़े बड़े काम ले सकते हैं अभी कोई एक्टिविटी हो रही है देखें सब मूवमेंट में आ गए सब कौवे आप देखें कोई कहीं कुछ Grouping of Distribution. crows is called murder. Murder, not a flock. Those the sea birds, this is called gaggle. The group name, you know. So with crows, it's a murder. Murder, like murdering. Murder, qatl. Killing. There's a murder of crows, gaggle of seagulls. Different groups have different names Yeah, in, different in their groups. But with crows, it's murder. A murder of crows. So this is a murder of crows. But my special field is insect Entomology. entomology. I learned this word as a child as entomology. 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 Yeah, entomology. I'm working with a Swiss company. Swiss. Swiss company. Suez or Swiss? Swiss. 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 Yeah. SGS. SGS. Swiss Government No. Service? No. Sociata Generale do Surveillance. Yeah, right. It's actual Yeah. name Name. the abbreviation SGS Abbreviation is SGS, but it's registered all over the world with the name of SGS. It's not Sociata Generale do Surveillance. It's not like that. SGS. All over the world. Because no one can speak French, so it's almost as bad as Urdu. Yeah. Urdu's, for Typical. me, Urdu's very hard. Yeah. 5 letters sound same sound. Da, da, ta, ta, ta. paw And if I say the wrong one, oh, I say one thing and I say the wrong ta, and they go, oh, Habib, no, the bad, very bad word. I'm like, yeah, what is the word? We can't tell you. if you see deeply so there is little bit difference in sounds huh? في العربية, every letter is Yeah. completely different. For me, easy. Arabiya is easy. But Urdu is very complicated. The da 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 da. I'm like, तो एंटोमोलॉजिस्ट यानी कीड़ों से मुताल्लिक Yeah. या It's all related to insects. इंसेक्ट्स यानी इसमें जो है वो अर्थवॉर्म्स भी आते हैं सारे. सारे आते हैं आपकी पीएचडी उसमें मेरी PhD तो नीम पे. ओह
Are earthworms considered insect or insect? या एनालिड्स, Okay, anyway. एनालिड्स। तो नीम के बारे में कुछ बताएं ना, सॉरी, Oh no, no, no. Go. नीम के बारे में आपकी पीएचडी है माशाल्लाह। Neem basically grown in subcontinent and initially it was treated as a shade tree and the Germans they also they visited here in subcontinent and then shifted this neem to Germany. अच्छा, तो यहाँ से जर्मन्स ने यहाँ से शिफ्ट किया इसको जर्मनी, और जर्मनी ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया। अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी हुआ है बट जर्मनी ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। और रिसर्च करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि सिर्फ ये जो नीम प्लांट है इसके अंदर 22 वैल्यूएबल केमिकल्स हैं। Is neem same as miswak? No. Or different plant? नीम Miswak. मिसवाक इज ऑल्सो But neem miswak, but not the miswak. No. That different plant. दैट इज दिस कम्स फ्रॉम पीलू, Like पीलू ट्री, या Pilu. pilo, yeah. But neem miswak is also there. Right. The people collect. Yeah. तो अब जो है ना ये 22 नीम के टाइप ऑफ हाँ। केमिकल। नीम से दुनिया भर में जो प्रोडक्ट बने हैं वो तकरीबन 22 प्रोडक्ट्स हैं नीम के। अब जो वर्ल्ड्स बेस्ट एंटीबायोटिक Yeah, I was going to say antibiotic. Very famous. Neem. वो नीम के निमोली, द नीम फ्रूट, उसके अंदर होता है नीम सीड, उसमें ये होता है, Sound like a bite. Yeah. उसमें होता है वो एंटीबायोटिक और उसका नाम है एजाडायरेक्टिन। क्या? डायरेक्टिन, As a director. एजाडायरेक्टिन, एजाडायरेक्टिन, because the entire neem plant is called एजाडायरेक्टिन इंडिका। Indica. इंडिका, Acha, from India. इंडस, Acha, Indus. Huh. इंडिका। तो इसका ख़ास बात ये है कि इसके जो पत्ते हैं, न्यूली ग्रोन पत्ते, बेबी लीव्स, वो बेबी लीव्स के अंदर भी जो है ना आपको जो टेस्ट इज़ नॉट सो बैड, कड़वा नहीं होगा ना, इट्स नॉट वेरी सार, बट यू कैन ईट देम। अगर वो आप खाते हो तो आपके जो स्किन डिजीज़ हैं, अच्छा। ये छोटे होते हैं ना दाने, Oh, पिंपल्स, the choti leaf. हाँ। New leaves. न्यू लीव, वो ख़त्म हो जाएंगे Huh. बिकॉज Just by eating. eating, yeah, because when you eat it enters, react with the body, और उसके बाद ये आपके ब्लड वेसल्स में जाता है और ब्लड की प्योरिफिकेशन करता है। हाँ, यस, एग्जैक्टली, टॉकिंग अबाउट द सेम। You prepare like sag. Yeah. You make like sag, ये देखें आप, or ये you लिया, just eat fresh. है ना, ये लिया आप, ये तोड़े, Fresh. Wow. Can you cook it like sag? Or यस, spinach? यू कैन मिक्स इट विथ अदर साग, बिकॉज इसका टेस्ट जो है ना वो It's a फिर little bitter, yeah. तो आप ये ले करके इसको आप जो है ना वो दूसरे साग में डाल दें ऐड करके, और फिर कुकिंग करें, बेहतरीन बनेगा। अच्छा, अब पत्ते हो गए ना, पत्ते के बाद इसमें आते हैं वो फ्रूट, निमोली। निमोली, जिसका बीज होता है। हाँ, निमोली का जो स्किन होगा ना उस फ्रूट का, Bitter, yeah. स्किन के अंदर एक नया केमिकल है, दूसरा केमिकल है, अच्छा। और जो उसका फ्लैश होगा उसमें दूसरा केमिकल है, Different. डिफरेंट, और जो सीड है उसके अंदर भी डिफरेंट केमिकल है। तो अल्लाह का कमाल है, एक प्लांट के अंदर आप देखें। अच्छा, अब आप आ गए फ्रूट पे और लीफ ख़त्म हुआ आपका। This- अभी
This leaf has astringent qualities. Yes, Astringent. astringent. I mean bitter, but also astringent. Is this good quality? It's good quality. For skin. Yes, it clears. It cleans the blood. Cleans the blood. Blood. And when blood is Gotta do clean, something because it tastes terrible. yeah. इसका एक्सट्रैक्ट जो है ना वो प्रोसेस्ड एक्सट्रैक्ट मार्केट में होता है. अच्छा. हाँ, बट अब वो अभी मुझे याद दिलाइएगा, वो बताऊंगा कि वो यूज़ नहीं करना चाहिए, ये यूज़ करना चाहिए, क्यों. अच्छा, अब आ जाए आप इसके ये जो तना है, स्टेम पे जो छाल है बाहर का स्किन, Bark, yeah. वो एक डिफरेंट उसके अंदर जो है ना वो क्वालिटी है, केमिकल है. ये इसकी बात कर रहे हैं. हाँ, ये यस. ये छाल के बाद. Each piece of the tree is different qualities. डिफरेंट क्वालिटी Wow. एंड डिफरेंट केमिकल. Wow. This makes it easy to process specific what you want. The seed or the skin or the leaf or the bark. How many total qualities? Chemicals? 20. 20. 22. 22. Okay. जी जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए. 22. हमारी वीडियो बन रही है ना. इसी तरह से जो इसका रूट है, वो रूट के अंदर भी बिल्कुल डिफरेंट है. यानी कि अब अगर हम जो है ना इसको सुनने के बाद अगर आप बैठकर इस प्लांट को देखें तो एक आम आदमी कहेगा नीम है ना. आप क्या कहेंगे? केमिकल फैक्ट्री. केमिकल फैक्ट्री. एग्जैक्टली. अब मुझे नज़र आ रहा है कि इसके अंदर जो है ना वो 4 फैक्ट्रियाँ या 5 फैक्ट्रियाँ हैं और वो फैक्ट्री अपना काम कर रही है. अगर जो है ना ये येलो पत्ते हैं तो मुझे मालूम है कि इस फैक्ट्री के अंदर कोई जो है ना फॉल्ट आ गया है, ठीक है, या फिर सीजनल होगा. शट डाउन किया है फैक्ट्री को, अभी फैक्ट्री को शट डाउन किया हुआ है, वहाँ काम हो रहा है, तो इसलिए ये तो ट्यूनिंग का काम हो रहा है. पर्सपेक्टिव Right. अलग अलग They बनेगा. burn it, right? Commonly it's burned. If you burn it, what is left? The ash has some quality, यस ऑफ कोर्स. and the smoke is also some type of chemical process. You know, like the देखें, burning पुराने makes it- वक्तों में इन ओल्ड डेज Yeah. हमारी फैमिली बड़े बूढ़े क्या करते थे कि अगर जो है ना कोई नहाने जा रहा है टू टेक बाथ You take और उसको ash. कोई स्किन डिजीज़ है, Uh-huh. तो वो क्या करेंगे, या तो इसके निम्बोली या नीम के पत्ते कुछ गर्म पानी में डाल देते हाँ. और उससे नहा लें, अच्छा. तो सर से पैर तक जो है ना सारे डिजीज़ जो है ना वो वॉश हो जाते हैं. मैं नहाया हूँ कई मरतबा बचपन में ना, और 3-4 साल पहले भी एक आध दफ़ा मैं जब नीम के फ़ायदे सुने, तो हमारे यहाँ तो सिर्फ बस यही जानते हैं लोग नहाने के हवाले से ना. इतना डीप नॉलेज जो जर्मन्स ने दी है या रिसर्च है उनकी, वो नहीं पता. देखें, इसके साथ ये तो एक हो गया ना नहाना. अब आप देखें हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, पुराने ज़माने में पेस्टिसाइड तो नहीं था, अच्छा. तो ये नीम के पत्ते सूटकेसेस में नीचे बिछाते थे जी. और ऊपर कपड़े रख देते थे. ये जो शादी के कपड़े होते हैं ना, नफ्तालीन की गोलियाँ So दीजिएगा. no preparation, just dry. You take just dry and put no in- no just the fresh fresh. fresh. अच्छा, and put down. put on there. it. अच्छा. Wow. if it is dry, Yeah. then they put in cotton pouches, put in corners, and just put the Do you clothing. make with tea? I mean, you make a hot water or just put in cotton? No, just That's put it in dry. cotton. अच्छा. You can put leaves as well or fruits Right. in cotton pouches Right. and put it in 4 corners, and then put Many your pests clothing. Many pests are repellent are repelled. Huh? because naphthalene has a negative impact on human health. I see. Naphthalene. Naphthalene, वो The that chemical. ball, white ball. From the neem. No. No, No. not from the neem. What is naphthalene? It's from the क्या होता है वो तो डब्बे में आमतौर फिनाइल.
Fennel. That's it. Phenol. Uh-huh. Phenol is dangerous for health. मेड फ्रॉम फिनाइल Phenol. फिनॉल Fennel. तो ये हो गया दूसरा कि आपको वो करते हैं. अच्छा, द एशेस और द पाउडर they were spreading in diseased plants. If some plant has some Disease disease, spreading. Yeah. then the dry leaves just do like this and on this. Wow. तो जो ड्राई पत्ते आए उसको आप हाथ में लें, इस तरह से उसका चूरा बनाएं, और जिन पौधों में आपको फंगस या फंगल अटैक है, बीमारी है, उसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर दें. तो जो ऊपर रुक गए वो तो ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, जो नीचे चले गए वो पानी के साथ फिर उसके रूट्स में चले जाएंगे, और रूट से फिर वो एसेंट ऑफ सैप होगा, और वो पूरा उसका ट्रैक जो है ना, यानी कि पूरा सिस्टम जो होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम या जो भी. Does it affect mycorrhiza, the beneficial bacteria, नो, beneficial fungus? It's okay. ऑल Mycorrhiza, बेनिफिट beneficial. Beneficial. And so the neem doesn't hurt. हर्ट, Doesn't affect. डजंट हर्ट, Just other fungus, it इट डजंट हर्ट. but it gets rid of other bad helps. bad fungus. बेसिकली जो फंक्शन है, मैं इसको भी बॉडी कहता हूँ, ठीक है ना, तो इसके बॉडी का फंक्शन जो है ना वो इम्प्रूव कर देगा, फंक्शन इम्प्रूव करेगा, और जो मेल फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव करेगा. इसके अगर पत्ते चूरा करके डाल दें पत्ते इसके चूरा कर दें. इसकी जड़ों में, हाँ, आप टाइम नहीं है, आप सिर्फ इसकी स्वीपिंग करें, पत्ते उठाएं, वो उसके जड़ों में डाल दें, खड्डा करें. कोई प्लांट ख़राब हो रहा है, ये यहाँ पर बहुत सारे प्लांट हैं जिसके अंदर के दीमक लग गई, टर्माइट, और भी बहुत प्रॉब्लम हो गया है, तो उसको खड्डे करके उसको गोदी करके ऐसे बनाएं, और ये नीम के पत्ते उसमें डाल दें. निम्बोली गिर रही है, झाड़ू लगाएं, निम्बोली भी उसमें डाल दें, तो आप देखेंगे थोड़े दिनों में आपको एक. अच्छा, इसका जो भी हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसका एक्शन स्लो होता है बट लॉन्ग लास्टिंग. तो आपका We should plant पेस्टिसाइड, some neem trees. पेस्टिसाइड क्या होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट है. नीम के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, अच्छा. नॉट ऑन ह्यूमन हेल्थ, वाह वाह. नॉट ऑन प्लांट हेल्थ. तो ये होता है. अच्छा, इसके साथ एक डिसएडवांटेज ये होता है कि से फॉर एग्जांपल हिल पार्क में जो नीम है, इसके अंदर अगर आप पत्ते को निकाल कर एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, तो इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट आएंगे इसमें एज अ डायरेक्टिन, वो आएगा फ़र्ज़ कर लें कि 5%. अगर आप चले जाएं गटर बगीचा, वहाँ नीम के दरख्त को निकालें तो वहाँ 7% आएगा. ज़्यादा एक्टिव है. हाँ, वहाँ पर चूँकि नीचे का इलाका है, ये चूँकि हिली एरिया है, तो हो सकता है कि ऐसा हो. अच्छा, फिर ये कि गटर बागीचा के अंदर जो है ना आपको न्यूट्रिशन भी मिल रहा है वहाँ पर, तो इसलिए. अच्छा, अगर आप जो है ना वो मलीर के एरिया में चले जाएं, फार्म हाउसेस में चले जाएं, तो कहीं पे 5%, कहीं 7%, कहीं 9%. पंजाब चले जाएं तो हो सकता है वहाँ पर कुछ और हो परसेंटेज. तो इसलिए प्रायर यूजिंग फॉर ह्यूमन हेल्थ वी नीड टू स्टैंडर्डाइज के कितना परसेंट जो है ना इसका एक्टिव है, या उसको मेंटेन करें 5% पे, ट्रीटिंग इट एज 100%, और फिर उसका जो है ना आप जो भी दवाई बनाते हैं वो बनाएंगे. पाकिस्तान में इसके पेस्टिसाइड बनाया है, ओनली एक पेस्टिसाइड बनाया है नीम का. Best. इसी तरह से वो बनाया है, पेस्ट बनाया है, टूथपेस्ट बनाया है. इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं, तो वो यूज़ होता है. अच्छा, पिछले साल ना डॉक्टर साहब, ये एक नीम का छोटा सा दरख्त है, उस तरफ ना उसमें ना सफ़ेद कीड़े आ गए थे. अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि नीम में भी कीड़ा. तो मेरे पास ना टोबैको वाटर था, अच्छा, तो उसका मैंने स्प्रे किया सिर्फ एक दफ़ा ना, तो उसके एक हफ्ते बाद मैंने देखा कि वो पूरा साफ़ हो गया अब तक. हाँ.
देखें वो जो आपके आया था ना वो था मीली बग कहते हैं उसको, मीली बग। वाइट होगा ज़रा कॉटन के जैसा भी, लेकिन कीड़े भी होते हैं उसके अंदर, तो वो मीली बग है वो। कैमोफ्लेज कर लेते हैं। हाँ कैमोफ्लेज, लेकिन वो नीम का इंसेक्ट नहीं है। उसके आसपास कहीं कोई ना कोई गुलाब लगा होगा या उसके आसपास कोई और उसी फैमिली के दूसरे प्लांट लगे होंगे। तो अगर जो है ना वो उस प्लांट के ऊपर पॉपुलेशन डायनामिक पूरा हो गया तो फिर ये उठ करके कहीं आसपास चले जाते हैं टेम्परेरी, फिर वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो हो जाता है। लेकिन ठीक है, टोबैको वाटर इज़ ऑल्सो वेरी गुड पेस्टिसाइड, टोबैको। अभी मैंने पिछले महीने पढ़ा कि जो इस प्लांट के अंदर जो डीएनए है उसमें 2 इंग्रेडिएंट्स और ह्यूमन डीएनए के 2 इंग्रेडिएंट्स सेम है। बिल्कुल। और ये सुनते भी हैं प्लांट्स जो है ना। हाँ खुसूसन एक रिसर्च हुई थी, उसमें उन्होंने ये देखा कि जब इनकी जड़ों पर पानी गिरता है ना तो ये पानी की आवाज़ को बहुत ज़्यादा सुनते हैं और उसकी तरफ उसको कैच करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। आप देखें ना कि जो सनलाइट होता है, दरख्त जो है ना वो हमेशा सनलाइट की तरफ झुकते हैं, ट्रैवल करते हैं सनलाइट की तरफ। अगर जो है ना वो आप और भी बहुत सारी इसके फंक्शन होते हैं। एक साइंटिस्ट ने कहा ऑस्ट्रेलिया से कि दरख्त रोते भी हैं जब आप इसको तोड़ते हैं अननेसेसरीली, तो ये रोते हैं। मेरे ख्याल में तो धूप लग रहा है। तो दरख्तों को रोते भी हैं वो। अगर आप जो है ना किसी हेल्दी दरख्त को तोड़ दें तो कहता है कि वो ट्री जो है ना वो हो जाता है, जैसे कि शॉक्स होते हैं ना, तो वो उसको भी शॉक लगता है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये तो जानदार है, सांस ले रहा है, तो जाहिर है कि जब अगर कोई जानदार है, जानदार को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका जो है ना अपना रिएक्शन होगा। जी हाँ। तो है। हम प्लांट्स लेते हैं ना किसी नर्सरी से, कराची से, बाहर से, कराची से, तो हम यहाँ पे ला के ना उनको 3-4 दिन उसी इन्वायरमेंट में रखते हैं, कभी लगाते नहीं हैं। क्योंकि जब हम शुरू में लगाते थे ना तो उसकी जड़ खुलती थी, उनको शौक लगता था कि वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं, तो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आता है। बिल्कुल सही है। तो हम 3-4 दिन रख के उसको वैसे ही जैसे आए हैं ना उसको पानी डालते हैं। जब वो इन्वायरमेंट से फैमिलियर हो जाते हैं फिर उसके बाद उनको प्लांटेड करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सही तरीका है ये। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब मछलियों को आप जो है ना वो लाते हैं ना उसके बच्चे और अपने किसी पॉन्ड में छोड़ते हैं, तो वो डायरेक्ट जो है ना लाया और नहीं छोड़ते हैं, बल्कि मछलियों को लाते हैं तो वो थोड़ा सा ग्रो की हुई होती है, 3 इंच 4 इंच के हिसाब से। तो वो 4 इंच की मछली लाएँ अपने बच्चे, और उसको सीड्स कहते हैं। तो वो सीड्स लाएँ, फिर आपने वहाँ वाले पानी में उसको निकाला पहले, उसके बाद यहाँ का पानी है ना थोड़ा सा उसमें डाला, एक्लेमेटाइज, ताकि वो नए वाटर से शॉक ना हो। तो थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, फिर देखते हैं उसको, फिर डाला, फिर देखा। तो बायोलॉजिस्ट फिश की एक्टिविटी वॉच करते हैं और उसके बाद जो है ना वो फिर उसको पानी में आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ते हैं। तो बल्कि पानी में ऐसे रखते हैं ये फ़िश खुद ब खुद चली जाए। अच्छा। और देखते हैं कि वो क्या जाना पसंद कर रही हैं या वापस आ जाती है शौक से। तो ये है बहुत सारे फैक्टर्स। नीम के बारे में आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई जो हमें नहीं पता थी। अच्छा, नहीं है तो मतलब जो कॉमन चीज़ें हैं वो हैं ये। वैसे तो खैर इसके अंदर की बेतहाशा जो है ना वो चीज़ें हैं, तो लेकिन ये कि बहरहाल ये कॉमन बात है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ये छाँव बेसिकली जो जर्मन्स यहाँ से ले गए थे ये प्लांट, वो इसीलिए ले गए थे कि वहाँ पर जो है ना शेड ट्रीज लगाएं छाँव के लिए। आपको पता है कि मेरे ख्याल है ज़ियाउल हक के दौर में
ये प्लांट जो है ना यहाँ से सऊदी अरब सऊदी में में, वो मीना अरफात मीना में। अरफात में लगाए थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है ना और ज़्यादा प्लांटेशन की है वहाँ पर। तो अब वहाँ पर आपको नीम के दरख्त काफ़ी नज़र आते हैं। तो वो मेंटेन इसीलिए किया है कि उससे वहाँ पर जो है ना कुछ सायेदार जगह बने। अब तो खैर वो टेंट वगैरह भी लगा देते हैं, सब कुछ करते हैं। हिल पार्क के हवाले से आप हमें मशवरा दें, हमें यहाँ पे कौन से प्लांट्स हैं वो ज़्यादा लगाने चाहिए? ये देखें, अभी 2-4 दिनों पहले यहाँ बात हो रही थी कि नए प्लांट लगा रहे हैं। तो मैंने यही कहा था कि पहले जो है ना हिल पार्क के अंदर जो प्लांट लगे हुए हैं, अगर उसकी मेंटेनेंस पे पैसे खर्च करें बनिस्बत ये कि हम नए प्लांट लगा दें, तो पहले जो पुराने प्लांट लगे हुए हैं ना वो बड़ा अच्छा, वो क्या कहते हैं उसको, वो जो आप प्लानिंग के साथ लगाएं। तो अभी जो प्लानिंग के साथ लगाए हैं, अगर वो दरख्त है तो ठीक है, जहाँ पर नहीं है ना वहाँ पर उसी जगह पे जो है ना वो दरख्त लगाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत ये कि नए दरख्त लगाएं। अगर पुरानी जगह पे और उन जगहों पे लगा देते हैं तो उसको मेंटेन करने में आसानी होगी और मेंटेनेंस जितने दरख्त हैं, अब जैसे मैंने देखा बहुत सारे दरख्त में दीमक लगी हुई है यहाँ पे। हाँ, अच्छा, स्पेशली इस पट्टी पे मैंने देखा था कि 3-4 दरख्त में जो है ना वो दीमक थी। ये रोड के साथ जो है, हाँ, ये रोड के इसमें साथ तो वो असल में नीचे गैस लीक हो गई है, तो वो दरख्त इस वजह से सूख रहे हैं। नहीं, मैंने ऊपर तने पे अच्छा, देखा है। तने पे। दीमक जो है ना वो नीचे से चलती जाती है और ऊपर तक आती है। वो जो पीछे हम लोग बैठते हैं ना बेंच पे, तो वहाँ पर भी जो सामने दरख्त था उसके ऊपर जो है ना दीमक चल रही अच्छा, थी। मुझे दिखाई दे, मैं हाँ, तो पेस्टिसाइड हमने- करवा दूंगा वहाँ पे। नहीं, मैंने तो लाकर डाला था उसमें, अच्छा। पेस्टिसाइड डाला था। फिर वहाँ भी मैंने एक नीम लगाया था, लगाया तो था ज़्यादा, लेकिन एक ही बचा है, बल्कि उधर की सफाई हो गई है सारी। तो अगर जो है ना वो हम पहले वो कर दें। अभी मैं देख रहा हूँ कि ये जो खड्डे किए हैं ये किस लिए किए हैं? ये केमिस्ट्री ने किया एक्सीवेटर से, हाँ? ये प्लांटेशन के लिए किया। अच्छा, प्लांटेशन के लिए किए हैं। अब देखें ना, इससे मेरा ख्याल है कि लैंडस्केप जो है ना वो अच्छे के बजाय बुरा लगेगा। लेकिन पहले जो लैंडस्केपिंग आपकी है, आपको ओपन लॉन दिया हुआ है, बीच बीच में एक एक प्लांट लगे हुए हैं दूर। अभी जो है ना वो जो रो एक चल रही है, ये रो चल रही है ना, इसको थोड़ा सा डीप करके और फिर ये खड्डे किए हैं। तो आपका जो है ना जो लैंड ऑक्यूपाई कर रहा है ना प्लांट, तो वो लैंडस्केपिंग जो है ना वो ख़राब हो रही है। लेकिन ये स्लोप में था, इस तरह था। अब आपका जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोप कम होता जा रहा है। एक तो स्लोप कम हो रहा है, दूसरे ये कि अब बीच बीच में ये प्लांट आ जाएंगे। तो लेकिन अब सेंटर में ये प्लांट आप डाल दें, ये भी सेंटर में डालें, तो ये भी सेंटर में। तो अब अगर इसकी कोई वजह है करने की ये इस तरह से, तो ठीक है, वरना ये जो कर रहे हैं इसके साथ ये पीछे बना हुआ है ना, जी हाँ। तो अगर वो जो छोटे प्लांट है ना उसको उसकी बराबर में उसके एक खड्डा करके अगर उसी एक रो में लगा दें, तो उस रो में अगर लगा देंगे और उसको जो है ना जब ये प्लांट ग्रो हो जाए तो उसको हटा दें। उनकी जगह वो नहीं है, प्लांट की जगह वो है। अच्छा, अब ये जो पॉन्ड के साथ जो दरख्त लगाते हैं उसका पर्पज़ है, उसका पर्पज़ ये है कि उस पर जो परिंदे बैठेंगे उनकी ड्रॉपिंग्स आएगी, वो पॉन्ड में जाएगी। पॉन्ड में जो है ना मछलियों के लिए फूड है, जो पत्ते जाएंगे वो मछलियों के लिए फूड है। तो ये पर्पज़ होता है। जब फार्मिंग होती है तो फार्मिंग में भी यही रखते हैं कि जितने भी साइडों में जो है ना ट्रैक बनाते हैं और उसके अंदर जो है ना बड़े दरख्त लगाते हैं ताकि जो पत्ते गिरें उनको कलेक्ट करके और फिर वो जानवरों के लिए जो है ना वो फूड बने, मछलियों के लिए या जो भी है तो वो बने। तो उसके लिए जो है ना ये करते हैं। ये है, ये सब चीज़ें हैं। तो बेहतर है कि इसको, मैं तो कहता हूँ कि इसके जो एग्जिस्टिंग मेंटेनेंस है ना, अब जैसे कि ये ग्रो कर रहे हैं वीड्स, अगर ये आपके पास वो हो कटर, तो इसके ऊपर चला करके इसकी सफाई हो जाए ना, तो इसके ऊपर पैसे खर्च करें कि जो है उसी को ब्यूटीफाई करें।
पहले मरहले में फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में जो है ना वो फिर ये करें कि मज़ीद प्लांटेशन लगाएं। प्लांटेशन भी जो है वो ये कंसंट्रेट करें कि एक तरह के प्लांट एक जगह लगाएं और वहाँ पर का माली उसको देखभाल करें। अगर पूरे पार्क में आप जो है ना वो पता नहीं कितने 20 एकड़ में है, 62 एकड़, तो उसके अंदर स्प्रेड हो जाएगा 62 एकड़ के ऊपर जो है ना वो 4 माली 6 माली 8 माली जो है ना वो बेचारे क्या करें। तो अगर जो है ना वो जैसे कि आप यहाँ पर जैसे कि होता है रोज़ गार्डन, अब रोज़ का माली जो है ना उसको गुलाब के मुतालिक सब कुछ पता होगा, उसको ऐसी जगह बिठा दे कि वो सिर्फ गुलाब की रखवाली करे, उसी एरिया पर उसी स्पीशीज पे फोकस करें। अब आप अगर मोरिंगा लगा रहे हैं तो मोरिंगा के साथ जो है ना मोरिंगा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मोरिंगा असल में पार्क का पौधा नहीं है। हाँ, पार्क का पौधा नहीं है, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मोरिंगा आप लगा रहे हैं कहीं तो मोरिंगा तेज़ी से बढ़ने वाला है, तो वहाँ पर जो है ना माली को पता होगा कि ये किस किस्म का पौधा है और इससे करना क्या है। इसलिए कि हर प्लांट का एक पर्पज़ है। सही है। अब अगर आपने इसमें फ्रूट प्लांट लगा दिया तो ये अच्छा नहीं करेगा, ये शो को ख़राब करेगा, पार्क के शो को ख़राब करेगा। इसलिए कि फ्रूट प्लांट जो है ना वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, तो ये तो यहाँ पर तो बैठना वहाँ लग जाएगा। हाँ, तो इस तरह से है, चला जाए फिर। ये बहुत अच्छी बात की आपने। मैं कोशिश करूँगा कि एमसी वालों को कन्वे करें हाँ, कि जहाँ पे बेंचेस लगी हुई हैं स्पेशली उससे अवेयर उससे दूर रखते हैं फ्रूट प्लांट। उनका इरादा यही है वैसे फ्रूट प्लांट्स लगाने का। एक वो पीछे पार्क बना रहे हैं शायद फ्रूट प्लांट्स का, ये जो सीढ़ियाँ हैं ना पीछे, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो है ना अभी 1 हफ्ते से देख रहा हूँ काम हो रहा है। वो जो इस तरफ जहाँ पे हम अपने फॉरेस्ट नहीं, वहाँ नहीं, ये पीछे जहाँ हम बैठते थे ना पहले, जावेद भाई और हम लोग बैठते थे तब पीछे ये जो बेंच है वो सामने। हाँ, ये हाँ, यहाँ पे वो जो बेंच है ना, हाँ, इससे पीछे जो सीढ़ियाँ हैं, अच्छा, सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, हाँ, तो फौरन जो वो होटल था उसको बराबर किया, तो वहाँ पर जो है अच्छा नहीं वो काम हो रहा है। वो होटल था वहाँ दुआ रेस्टोरेंट या हाँ, नहीं एक यहाँ सी कॉइन, यहाँ पे तो होटल नहीं था, वो रेस्टोरेंट था। अच्छा वो बात सही है हाँ हाँ रेस्टोरेंट जिसमें शादियाँ जी हाँ जी हाँ सही है समझ तो वो तोड़ फोड़ जो किया है तो उसका मलबा पड़ा है, वो मलबे को लेवल वगैरह कर रहे थे, तो मैंने वैसे ही पूछा कि भाई क्या खैरियत है, यहाँ क्या करोगे, तो बोला यहाँ पर फ्रूट प्लांट्स लगाएंगे और ये फ्रूट क्या फलों के बाग आते हैं। तो वो ठीक है कि एक जगह पे सारे जो है ना वो फ्रूट लगाएं, तो अच्छी बात है। हाँ। आपने जो पीएचडी है वो कराची यूनिवर्सिटी से मैंने कराची यूनिवर्सिटी से की है पीएचडी, और प्रोफेसर मेरे जर्मनी में थे, सुपरवाइज़र वो जर्मनी में थे, बट नाउ ही इज़ इन पाकिस्तान, और बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, और माशाल्लाह 100 साल के तो होंगे। यस, और हर्बल्स के माने हुए प्रोफेसर हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड उनके जो है ना रिसर्च पेपर्स हैं, बस उनकी शागिर्दी में हमने भी काम किया थोड़ा, मेरे भी 8-10 रिसर्च पेपर्स हैं नेट पे, जर्नल्स में छपे हैं। उनका नाम क्या है? तो डॉक्टर नईमुल हसन नकवी, SNH नकवी, हाँ जर्मन नेशनल है, जर्मन नेशनल है पाकिस्तानी। पाकिस्तानी। तो वो बेसिकली बहुत अरसे से जब यहाँ से वो नीम लेकर गए ना, तो ये प्रोफेसर साहब को भी ले गए। अच्छा। तो हाँ, वो बड़े यंग थे, फिर वहाँ से निकल करके वो अफ्रीका गए, वहाँ पढ़ाया, फिर अफ्रीका से वो यूरोप गए, वहाँ पढ़ाया, फिर पाकिस्तान आ गए, तो आखिरी उम्र में तो फिर पाकिस्तान की याद सताती है, तो वो आ गए यहाँ। चले सर, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, Very good to meet you. नाइस टू मीट यू। अल्लाह हाफिज़।